What is name numerology? Why it works and why it doesn't work? Almost आप में से 50% people I have seen that you have been into various numerology classes, various numerology webinars. सब लोग आप expert हैं. हर एक का एक अपना तरीका होता है न्यूमरोलॉजी को देखने के लिए. तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके और मेरे व्यूज कुछ डिफर करें, बट स्टिल इट इज ऑलवेज अबाउट हाउ यू सी द थिंग्स. जो गाड़ी आप सामने से देखते हो आपको अलग तरीके से दिखेगी, साइड से देखोगे अलग तरीके से दिखेगी. इवन अ कॉइन हैज 3 साइड्स. 2 साइड नहीं होते, थर्ड साइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉइन की. उसी तरह से न्यूमरोलॉजी को देखने का तरीका मेरा भी थोड़ा सा अलग है. आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. आई एम विवेक मंत्री and I am into professionally I'm practicing name numerology, focus more on medical numerology. I'm a certified NLP trainer, a clinical hypnotherapist by profession, licensed under British Hypnotherapy Association and also under Indian government. Numerology and astrology I have been practicing since 1989. भगवान की कृपा से चलती गई गाड़ी. Professionally I was an engineer. In 2013, the life changed after a small surgery. And then slowly I came completely into this. And now I am a full-time name numerologist. And name numerology always means that what name you are carrying the day you are born, along with the birth date. So this is an open question. Of course, we'll put up the questions and we'll also take up your questions also. कितने लोगों ने पहले न्यूमरोलॉजी की हुई है? You can just raise your hands. Maybe anywhere. From anywhere, if someone has done numerology, you can raise the hands. वहाँ sign होती है. So I'll be at least able to see that how many of you are on the same page. तो कोशिश यही करूँगा कि try to discuss something different and try to find out something different which can be worked out in a better way. To start with, I would put it this way. कितने लोगों के पास घर पे गाड़ी है? Anyone who would like to interact? किसके पास गाड़ी है घर पे? You can speak, unmute yourself and speak. Unmute and speak. हाँ जी. Yes sir. आपके पास गाड़ी है? Yes sir. Okay. कौन सी गाड़ी है सर? Sir, it's Toyota Corolla. Toyota Corolla. Amazing. Okay. So now I have a small question. Toyota Corolla की जब ही आप like it is working fine, perfectly, सब अच्छा चलता है गाड़ी का. अब सपोज अगर आपकी अंदर की अपहोल्स्ट्री थोड़ी सी खराब हो जाती है, या अगर इंजन में कुछ फॉल्ट हो जाता है, या कुछ थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है, so what do you do? सर ऑब्वियसली जो मैकेनिक होता है, जो इंजीनियर होता है, उसके पास जाते हैं, उसको चेक करवाते हैं. तो उसके बाद जो मुतलका पार्ट होता है उसको, या अगर रिपेयरेबल होता है तो रिपेयर करवाते हैं, नहीं तो उसको रिप्लेस करवाते हैं. यस. एंड अगर गाड़ी सब कुछ अच्छी चल रही है, फिर भी आप जाके कभी कभी अंदर से अपहोल्स्ट्री चेंज कराते हो, कुछ अंदर के एस्थेटिक्स चेंज कराते हो, so that you get a better pleasure, right? कि 5 साल हो गए, अभी गाड़ी के अपहोल्स्ट्री चेंज करनी चाहिए. जी बिल्कुल सर. But then by changing that upholstery or by changing that particular part, does your Toyota Corolla get converted into Mercedes Benz? No sir. Absolutely not even not. a model change. Not even the model will change. ये सभी बात, everyone agrees with this, that even if you change the internal upholstery, your car can't change. जो Honda City है, Honda City का आपका Mercedes नहीं बनेगा, ना ही Honda City की मारुति बनेगी अपहोल्स्ट्री चेंज करने के बाद या इंजन चेंज करने के बाद. So my point is that whenever we do name numerology, whenever we do name numbers or name correction, it is all about how your name is placed. Suppose if things are going on good in your life, हमेशा name numerology
कब करनी चाहिए? जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो तभी करनी चाहिए, या जब सही सही चल रहा है तभी भी कर सकते हो? एनीवन ऑन दिस? विल कीप दिस सेशन इंटरैक्टिव, जिसको जो जो कहना चाहता है बिल्कुल आप आपकी बात कह सकते हो। जब आपके लाइफ में बहुत सब कुछ सही चल रहा है तब आपको नेम बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। बोथ। परफेक्ट। सो विजडम सेज कि प्रॉब्लम आने से पहले डायग्नोसिस हो जाना चाहिए। रेगुलर चेकअप 6 महीने में क्यों एडवाइस होता है? यस। सो आपका जो नाम है, ये नाम जिस दिन आप पैदा हुए वो डेट तो आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपके हाथ में है वो सिर्फ आपका जो नाम यूज होता है वही नाम यूज होता है। अब जब आप गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग करा सकते हो, जब आप गाड़ी की अपहोल्स्ट्री चेंज करा सकते हो अपग्रेड कराने के लिए, तो व्हाई डू यू अपग्रेड इट? बिकॉज यू वांट टू सी अ बेटर परफॉर्मेंस। अग्रीड? अपहोल्स्ट्री इंजन को ठीक कराते हो, अंदर का एक कंफर्ट फीलिंग आता है गाड़ी में, अपहोल्स्ट्री थोड़ी अच्छी लगा दी तो और ज्यादा फीलिंग अच्छी आएगी, बट इट डजंट चेंज योर कार। जी सर, एग्रीड। हाँ। अब यहाँ पर दिक्कत आती है, एंड आई पुट इट वेरी ऑनेस्टली दैट व्हेनेवर नेम न्यूमरोलॉजिस्ट चेंजेस एनी नेम, it is important to understand what is your birth number and destiny number. क्योंकि अगर आपका जो बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर है which defines your entire flow of the life, based on that you can always correct your name, and your name correction can be a added advantage to boost the luck factors in your name. अगर कोई कहता है कि नेम करेक्शन करने से एक्स से वाई बन जाएगा, तो डेफिनेटली एक्स से वाई नहीं बन जाता, वरना आप मोहम्मद साहब की जो टोयोटा करोला है, इट कुड हैव गॉट कन्वर्टेड टू मर्सिडीज बेंज। ओनली थिंग विच हैपेंस इन द बेस्ट पॉजिटिव वे इज एक्स से रिलेटेड जो उनके फैक्टर्स है, जो उनके बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर के साथ जितना एडवांटेज उनको मिलना चाहिए जो अभी नहीं मिल रहा है, वो सारा एडवांटेज मैक्सिमम उनको मिलना शुरू होता है whenever we do any name correction. The most important thing which we get through the name correction is the best of best, whatever features are there in your name, the pros and cons, जो भी positives हैं वो आपको आपके नाम के correction के साथ मिलने शुरू हो जाते हैं। But it doesn't mean that it will change your destiny. Let me put it very bluntly. Whenever you are doing your name correction, it means that you are adding certain positive things in your name which will help you to accelerate your growth to reach your destination. I'll put it again. Whenever we are doing any name correction, it helps you to accelerate your growth towards your destination. जो भी आपका डेस्टिनी नंबर है, बर्थ नंबर है, because everyone comes with some जो आपके प्रीडिटरमाइंड नंबर्स होते हैं, आपके BNDN के साथ, आपके पास्ट लाइफ के साथ सारे चीजें जुड़ी हुई होती है, एंड उसी हिसाब से आपकी लाइफ उसकी इर्द गिर्द गिरती है। एंड कुछ लोगों को आगे जाने में दिक्कत होती है, तब वो जाते हैं नेम करेक्शन के लिए या नेम एनालिसिस के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, वॉट एवर वी डू। बट नाउ सपोज इफ यू डोंट डू इट, तो हो सकता है आपका जो एग्जिस्टिंग नाम है, इफ दैट इज नॉट इन सिंक विथ योर बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, तो आपको उतना वो सारा लक फैक्टर नहीं देगा। आज हम लोग लाइव देखेंगे कि किस तरह से कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे कि किस तरह से आपका नाम आपको इफेक्ट करता है, किस तरह से चीजें चेंज होती है। बिकॉज द डे यू आर बॉर्न you are tagged with the numbers. So with this I would like to start a small PPT for every one of you. So what is numerology? अगर हम देखते हैं तो it's an age-old science and it has proven its point in every facet of the life. हम लोग आगे actually कुछ demos भी देखेंगे, कुछ live session, live examples भी देखेंगे. The day you are born, you are always tagged. अब जो मैंने गाड़ी का example दिया, I'll come back to that example. This is a Honda City car. अच्छी है गाड़ी दिखने में. This has its certain boundaries. गाड़ी का जो डिजाइन है
ये ऑलरेडी फिक्स है, उसके लेंथ वेट विड्थ सब कुछ फिक्स हो चुका है, बिकॉज फैक्ट्री हैज डिजाइंड इट. नाउ व्हाट यू डू इज, आप ये आपका इंटरनल इंटीरियर है गाड़ी का, XYZ किसी भी गाड़ी का. अब जाके आप किसी मैकेनिक के पास या शोरूम के पास जाके आप बहुत अच्छा इंटीरियर कराते हो, अपहोल्स्ट्री पूरा चेंज कर दिया, गाड़ी में आपको फील अच्छा आएगा, एब्सोल्युटली इट विल गिव एन अमेजिंग फील. बट डज द व्हीकल चेंज? नो. योर फाइनल डेस्टिनी, your final number, your final area which you got in that car was already fixed. The only thing where you could play around was the upholstery, was your engine oil, was your servicing of regular things. उसके आगे आप Honda City को Mercedes में convert नहीं कर सकते हो. Honda City will run as a Honda City, but to run at a peak performance, what you have to do is you have to manage your engine oil, you have to manage the engine, एंड अंदर का बहुत अच्छा कंफर्ट आने के लिए आप अपहोल्स्ट्री चेंज कर सकते हो, एसी के गैसेस चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. सेम अप्लाइज विद योर नेम. आपके BNTN के हिसाब से जो भी आपकी लाइफ है उस हिसाब से आप आपका नेम करेक्शन कर आप उसमें सारी चीजें ला सकते हो, एंड इट कैन हेल्प यू टू रीच दैट लेवल. बट डोंट एक्सपेक्ट दैट एक XYZ नाम पे आप लेके आगे कि मतलब आपका नाम इस तरह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. नो, इट विल हेल्प यू टू रीच योर डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन योर numbers. Not every 2541 can become Narendra Modi, absolutely not. But every 2541 can utilize his number skills, the positivity of that number to reach the best of his or her life. Again, I am putting it. Not every 2541 can become Narendra Modi, but he or she can use the positivity of those numbers and reach the best in their life. Not every 42 number, not every name number 42 can become Shah Rukh Khan. Absolutely no. But they can utilize those particular positivities of their name and achieve the best in their life. नेम न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट ही ये है कि जहां पर आप काम करते हो, जिस एरिया में काम करते हो, जिस फील्ड में काम करते हो, आपकी लाइफ जो है उसमें मेडिकल एस्पेक्ट्स क्या है, आपकी लाइफ में क्या हेल्थ इश्यूज है, ये सारी चीजें नेम न्यूमरोलॉजी की तरफ देखी जाती है. तो यू कांट चेंज योर होंडा सिटी टू मर्सिडीज जस्ट बाय चेंजिंग द अपहोल्स्ट्री. एब्सोल्युटली नो. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली कार ही चेंज करनी पड़ेगी. अगर सपोज आपका होंडा सिटी का इंजन खराब हो जाता है ऐसे लेवल में कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है, तो आप उस गाड़ी को स्क्रैप करते हो एंड टोटली नई गाड़ी ले लेते हो, आइदर अपग्रेडेड और मे बी वही. नेम न्यूमरोलॉजी. अगर कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जहां पे आप कुछ भी करो नेम करेक्शन नहीं होता है, वहां पर आपको टोटली नया नाम लेना पड़ता है. सो नेम करेक्शन एंड नेम चेंजिंग आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स. Most of the people, they prefer to go for name correction क्योंकि name change is not an easy thing. आज आपकी उम्र के 30, 40, 35 साल जा चुके हैं, आप एक नया नाम लेके जल्दी वाइब्रेट नहीं हो सकते हो. So the only thing which remains in hand is to utilize best of best what you have in your name, and it works. So name change should be always the last option. Name correction सेकेंड लास्ट ऑप्शन. बट सबसे पहले आपको गाड़ी की अपहोल्स्ट्री चेंज करनी चाहिए. सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि गाड़ी में क्या क्या हो सकता है, आपके नाम के पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी क्या है. सो व्हाई आर वी सेइंग ऑल दिस? द डे यू आर बॉर्न यू आर टैग्ड विथ अ नंबर. जैसे बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, सबसे पहले उसको एक अच्छा नाम दिया जाता है, कुछ ना कुछ उससे नंबर दिए जाते हैं कि हाँ ये फलाना 12 नंबर का बच्चा इसका, 13 नंबर का बच्चा इसका है. उसके आगे जैसे जैसे आपकी लाइफ जाती है, योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड अ नंबर, राइट फ्रॉम योर रिपोर्ट कार्ड, चाहे फिर वो ग्रेड हो चाहे नंबर्स हो, एवरी नंबर मैटर्स इन योर लाइफ. आगे आपका मेडिकल रिपोर्ट, बच्चा हॉस्पिटल में होता है उसके मेडिकल रिपोर्ट तो देते ही हैं. आपका वेट बहुत कॉमन, एवरीवन इज वेरी मच कॉन्शियस कि अरे यार मेरा वेट इतना बढ़ गया, ये हो गया. Most of you are conscious about your weight.
कपड़ों की साइज दोनों जेंडर के लिए कि मेरा ये साइज है, मेरा वो साइज है. Everything comes in form of numbers. T-shirt, the world famous Messi T-shirt, that is also having number 10. So your every life, everything which happens in your life revolves around the numbers. चाहे आपका बर्थ डेट हो, चाहे आपका स्कूल का मार्कशीट हो, अगर आप जाके देखोगे आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, टुडे यू कैन डू अ स्मॉल एक्सरसाइज. मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे करनी है, बट आई जस्ट एक्सप्लेन इट. आपके लाइफ के जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं अब तक, try to list down them on the piece of paper along with the dates, and you will see that most of the events have common dates. Either total same आएगा या जिस दिन event हुआ है वो date same आएगा. Because your birth number and destiny number always hampers you. And especially when it comes to number 4 and number 8, जिनकी पैदाइश नंबर 4 पे हुई है, for example 4, 13, 22, 31, जिनका डेस्टिनी नंबर 8 है, 8, 17, 26, ये लोग तो अपने लाइफ में मैक्सिमम चीजें रिवॉल्व होते देखेंगे कि इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो इनकी लाइफ पर 4, 8 पे ही होती है, इनके फैक्टर्स में होती है, इनके जो नंबर्स है उस हिसाब से. सो ट्राई टू डू दिस होमवर्क फॉर योरसेल्फ इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूमरोलॉजी. यू विल सी दैट योर ऑल योर इंपॉर्टेंट इवेंट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ये आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेंगी. Now we'll go back to how numerology has actually impacted the places. Name numerology कैसे काम करती है, इसका एक लाइव एग्जांपल हम लोग देखेंगे. 2-3 और बनाए हैं मैंने. Everyone knows this place. कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, अभी सभी लोगों को श्रीलंका पता है. When it was Ceylon, it was number 24. An amazing number, जहां पर Ceylon was one of the biggest exporter of the spices. बहुत ही ज्यादा उनके पास पैसा था. They were like richest place. काफी ज्यादा पैसा था. Later on, when Ceylon changed to, और ये Ceylon का abundance था, सबसे ज्यादा दालचीनी अगर दुनिया में कहीं बिकती थी तो वो Ceylon से जाती थी. बाद में जब Ceylon का हुआ श्रीलंका, Sri Lanka came on number 18. Now, there are differences of opinion for many people कि 18 number अच्छा है या बुरा है. From my perspective, 18 is a number which helps you to understand your pros and cons. जैसे ही इस नंबर पे श्रीलंका का नंबर जैसे ही 18 आया, 18 gives you struggle. 18 definitely gives you challenges. So it depends upon your strategy, that what strategy you are using to handle those challenges. जैसे ही 18 नंबर पर आया श्रीलंका, Ceylon का जैसे ही श्रीलंका हुआ, everyone knows how LTTE was formed, what were the other things which happened in Sri Lanka. सभी को पता है. Now, does it mean that 18 number is bad? Absolutely no. 18 पर आपको successful लोग भी मिलेंगे. But then 18 is a number which says that you have to stand for yourself. 1 is Sun, 8 is Saturn. हर एक के पर्सपेक्टिव्स अलग हो सकते हैं. मेरा पर्सपेक्टिव 18 को देखने का इस तरह से है कि 1 is Sun, 8 is Saturn. 1 gives you the leadership qualities and 8 gives you a logic to think about it. कि किस तरह से आप जजमेंटल होते हो, किस तरह से आप जस्टिस यूज करते हो. The things which went wrong here will not go what is right and what is wrong in Sri Lanka. But when that 8, that justice, that justification, when it didn't happen, 1 plus 8 is 9. Lots of bloodshed happened in Sri Lanka, which everyone knows. So 18 number signifies that how exactly you are looking towards your life. अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. जालियनवाला बाग, ऑपरेशन ब्लू स्टार, Amritsar 18. This city has also seen lots of ups and downs. But does it mean that it is a bad number? Absolutely no. The world famous and a
pious place जो है Golden Temple, that is also situated here. So 18 number can give you good as well as bad traits, but 18 में struggle ज्यादा आता है, definitely आता है. So the person who is having name number 18, or people who are born on name number 18, definitely they have to see that how exactly they can see towards their life. Not a single number is good or bad. Every number comes with its own traits. The only thing is you have to make sure that if they are in sync with your BNDN, तो आपको उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा मिलेगा. We'll go for one more example. मैंने थोड़े से एग्जांपल्स लिए हैं आज के लिए. 28, my favorite city, पूना. जब तक ये पूना था 28 नंबर पे था. In 19 almost like 76 or 77 it was changed to Pune. Till it was 28, it had its own things to do. काफी सारी चीजें हुई, social reformers हुए. 28 is a good number, but it also gave the struggle to the city. यहाँ पर क्रांतिकारी भी बहुत अच्छे से अच्छे हुए. Pune has a very good history for freedom fighting. काफी सारे स्ट्रगल्स यहाँ पर हुए, बट ये नंबर 28 जो है ये लीडरशिप देता है प्लस स्ट्रगल्स भी देता है एंड उसमें सक्सेस भी दिलाता है. बट देन वंस इट वाज चेंज टू पुणे, दैट वाज नंबर 24, 1977 या 78 में हुआ. आफ्टर दैट द ग्रोथ व्हिच पुणे हैज सीन, पीपल हु आर सीनियर इन दिस ग्रुप और पीपल हु आर बोर्न एंड बिल्ट अप इन पुणे, they must have seen that after 1980s the growth in Pune which has happened is tremendous. जबरदस्त growth हुई. 24 number gives you बेटा एंट्रेंस पे 24 वो number रिवीटा फोटो करवा रही है. 24 number gives you an amazing growth. अब हम जाते हैं और एक नंबर पे. Gujarat, everyone knows. Gujarat is also coming on number 17. City has seen lots of things, but then also the same as number 8. So that city also has seen lots of struggles. State has seen lots of struggles, but वहां पर भी अच्छी चीजें हुई है. So not a single number is good or bad. It always depends on how exactly you are looking towards the thing. अगर आप किसी चीज को पॉजिटिवली देखते हो तो आपको उसके पॉजिटिव चीजें डेफिनेटली मिलेंगी. बट अगर आप सिर्फ नेगेटिव पर ही फोकस करोगे कि हाँ मेरा तो BNDN 4 और 8 है, मेरे तो लाइफ में यही होने वाला है, तो वही होगा. बट इफ यू सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर नंबर, थिंग्स कैन चेंज. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल गो विद द नंबर्स जस्ट बाय आइदर बीइंग अ सेल्फ गूगल डॉक्टर, कि गूगल डॉक्टर बन गए, इस नंबर पे लेके आए, इस नंबर पे ये हुआ एंड देन थिंग्स स्टार्ट वर्किंग. ऐसा नहीं होता है. योर सिंगल नेम कैन ऑल्सो क्रिएट हेल्थ इश्यूज इफ दे आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट वे. आपका एक अल्फाबेट आपको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है. सो इट मेक्स अ डिफरेंस कि आप आपकी लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहते हो. आप आपकी गाड़ी जो है होंडा सिटी, उसको होंडा सिटी की तरह फर्स्ट बिलीव दैट इट इज होंडा सिटी एंड इट विल बी अ होंडा सिटी. Unless and until you really want to make an effort and buy a new vehicle. So जो आपका एग्जिस्टिंग नाम है, जो आप एग्जिस्टिंग जब नेम करेक्शन करते हो तो आपको आपके BNDN के हिसाब से जितने भी रिजल्ट्स है, it helps you as an accelerator to give you the maximum results in that boundary. यहां तक किसी को कोई डाउट है? Anyone having any doubt, we can unmute for 2 minutes. सर नेम कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे कि पर अल्फाबेट पाइथागोरस सिस्टम के हिसाब से या सेंडेलियन के हिसाब I would also request you, जो भी बात करना चाहेगा, please also put on your camera and introduce yourself. It's a request. ओके सर. Please put on your camera because I can't see everyone on the screen. तो जो भी कहना हाँ जी,
यस हाँ रश्मि जी. जी हाँ जी द थिंग इज दैट कि नेम करेक्शन के लिए हमको पाइथागोरस सिस्टम में जाना चाहिए या शेंडेलियन के लिए? There are various views about it. If personally, if I have to go for it, I go for Chaldean. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दही वड़ा, दही भल्ला नॉर्थ में जो खाते हो, दिल्ली में खाओगे तो आपको नमकीन मिलेगा, पुणे में आएगा तो मीठा दही वड़ा मिलेगा. सो डज इट मीन कि दही वड़ा बदल गया या खराब है? Everyone has their own perspective to see towards the things. Some Actually, people prefer Pythagorean. I personally go for Chaldean when it comes to name correction. हाँ, जैसे रश्मि महाजन शेल्डियन के सिस्टम में 7 आता है और मेरा डेस्टिनी भी 7 है और बर्थ नंबर 9 है, ठीक है. बट अगर रश्मि महाजन पाइथागोरस से जाते हैं देन इट कम्स टू 8. ओके. और 8 नंबर्स में मेरा काफी, आपने ऐसे बोला ना, कुछ आपने अपने लाइफ में इस तरह देखो कि कोई ना कोई नंबर आपको, माने अच्छे बुरे सब एक कोई ना नंबर में आए हैं. तो मेरी जब शादी हुई दैट इज डेट इज आल्सो 8 थी, 17 थी और पूरा का टोटलिंग भी 8 थी. मेरे बच्चे भी हुआ, 8 हुआ. मेरी सेकंड डॉटर हुई, डबल, उसमें भी 8 आया. Definitely what you should do is, if you gel with Pythagorean, you should follow Pythagorean. Okay. There is no necessity कि मैं कहूंगा इसलिए आप Chaldean से जाओगे. No. If your subconscious mind, घर भी मैंने चेंज करे हैं, जितने घर में भी चेंज करे उसमें 8 नंबर था हर बार. so if your subconscious mind is syncing with Pythagorean, it will help you. For example, 8 number is following me. बिल्कुल. एंड अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको उस डॉक्टर से ज्यादा रिजल्ट मिलता है. अगर आप उस एमडी सर्जन के पास जाओगे तो भी शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट आपको एक रेगुलर जो एमबीबीएस डॉक्टर है आपका हमेशा का, बिकॉज यू जेल विद दैट पर्टिकुलर डॉक्टर, आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां पे जेल होता है एंड यू गेट द रिजल्ट्स. सो इट डिपेंड्स अगर अपॉन. एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाते हैं तो मेरे गुरु भी, माने राशि गुरु भी सैटर्न है. So definitely, if you are gelling with Pythagorean, go with Pythagorean. You should go with your gut instinct. First and the most important thing in this occult science, what matters is your gut instinct. Yes, अगर आपका exactly. gut instinct कहता है कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए तो जाना चाहिए. अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो बोल रहा है गलत है, तो you should immediately stop it and you should move away from that place, because gut instinct plays a very important role in any occult science. Okay, madam. अगला क्वेश्चन. थैंक यू सर. थैंक यू मैडम. सर ये कैसे पता चले कि अभी नेम नंबर कौन से नंबर पे लेके जाना है, कौन सा नंबर हमारे लिए लकी है, कैसा पता चले? सर वो that is, we will come to that. Of course it's a part Okay. of the actual name correction program, but मैं आज आपको definitely, because most of you I know that you know numerology, हर एक नंबर के हिसाब से उसके खुद के लकी नंबर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं, हर फैक्टर को कैसे कंसिडर करना चाहिए, ये भी मैं आपको आज डेफिनेटली आज कुछ ना कुछ अच्छे टिप्स दूंगा. सो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर कमिंग टू इट. मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल कवर. सर तो चेंज करने के बाद लाइक ये पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करना जरूरी है या नहीं. रीजन व्हाई इट इज नॉट नीडेड, इफ यू गो बैक टू द एरा ऑफ लाइक 1980s या 1990s, आपको हमेशा बैंक जाना पड़ता था, आपको हमेशा जाके साइन करनी पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था. टुडे इन द डिजिटल वर्ल्ड एवरीथिंग इज ऑनलाइन. Your name is vibrating continuously on the social media. Even if you are sleeping, still your email account is active. Still your digital bank account is active. Everything which is vibrating online continuously will give you a result. अगर आपको अभी भी, अगर आपको लगता है कि मैं तो सो गया था या सो गई थी तो मेरा नाम नहीं, your name is vibrating at that frequency when it is on the social media. तो वो आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स दिलाता है. एंड कभी भी नेम करेक्शन करने के बाद इमीडिएटली आपने जाके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं चेंज करने चाहिए, बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर इंडियन गवर्नमेंट अलाउज यू टू चेंज योर पैन कार्ड ओनली ट्वाइस और इवन आधार कार्ड ट्वाइस. सो यू कांट गो एंड फाइट विद देम एवरी नाउ एंड देन. जब तक आपको नेम करेक्शन का रिजल्ट नहीं मिलता है कि साल 2 साल, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन what time frame might take for you to get that result.
राइट। आज जैसे ही नहीं, आप नेम चेंज करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा क्या? प्रोबेबली हो सकता है, प्रोबेबली नहीं भी हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा ऑल्सो। प्लस आप जब बिलीव करते हो कि यस इट विल हेल्प मी, देन इट विल हेल्प मी, वरना दुनिया का अच्छा से अच्छा नाम भी आपको बिल्कुल कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग, if you don't believe the name, or if you don't believe the numerologist who has given the name, you will not get even 1% of the result, no matter how much money you have paid to that person. It will not help you. मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, because you can't see anything. You have to believe in the things that yes, it is working. Name numerology is a science which is completely out of that how exactly you believe the things. एंड आपके अल्फाबेट्स ही आपको डिफाइन करेंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ जा सकती है। आपका फर्स्ट अल्फाबेट डिफाइन करता है, लास्ट अल्फाबेट डिफाइन करता है, अल्फाबेट के कॉम्बिनेशंस डिफाइन करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती है। सो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर नेम फॉर लास्ट 30-40 years, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इमीडिएटली आपको चेंज मिलेगा? इमीडिएट चेंज सिर्फ पॉइजन देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आजकल पॉइजन भी नकली आने लगे। तो डोंट एक्सपेक्ट कि जैसे ही आज नेम चेंज किया इमीडिएटली कल से लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ, ऐसे भी कुछ लकी लोग होते हैं जिनको हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में रिजल्ट्स इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन देयर बिलीफ सिस्टम, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू बिलीव द नेम, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दैट नेम इज सिंक्ड। क्योंकि एंड आई एम वेरी frankly saying, just bringing your name on the lucky number doesn't help, very honestly. ऐसे कितने ही नंबर 37 वाले हैं जिनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ऐसे कितने ही नंबर 33 वाले हैं जिनको किडनी के इश्यूज हो जाते हैं। It makes lots of difference, and very responsibly I am saying this sentence. It makes a difference that what alphabets, what elements you have added in your name. कितने मेटालिक एलिमेंट्स है, कितने एयर एलिमेंट्स है, कितने वाटर एलिमेंट्स है, हाउ एग्जैक्टली इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ, और एल्स द लाइफ बिकम्स मिजरेबल। जस्ट नेम नंबर लेके आया, हाँ फर्स्ट नंबर 24, फाइनल नंबर 41 हो गया, नवीन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं होता है। योर नेम, योर अल्फाबेट makes lots of difference, placement of the alphabet makes lots of difference. I am not going here into details of any Pythagorean, क्योंकि यहाँ पे Pythagorean के बहुत सारे experts हैं जो event prediction भी जानते हैं। Even if I follow Pythagorean, I don't practice it, but I believe in name numerology, क्योंकि जब आपके अल्फाबेट्स के प्लेसमेंट सही है तो आपको वो रिजल्ट देंगे ही, बट अगर गलत प्लेसमेंट है तो आपको उसका गलत का रिजल्ट भी मिलेगा, no matter how much lucky your name number is. In black and white I am saying on the record. So don't be under wrong assumptions कि आपका नेम नंबर लकी नंबर पे आ गया मतलब आपको रिजल्ट्स मिले, एब्सोल्युटली नहीं मिलेंगे। Name number 37, I have seen people getting issues of weight, getting issues of unresolved stomach problems होते हैं, but does it mean that you should not give name number 37? दे सकते हो, but then it's a duty of numerologists to tell them that what can happen, what can not happen, and guide them in the right way. I am specifically working on medical numerology, तो मुझे, and I'm a registered medical practitioner. आज तक मैंने कभी बताया नहीं, but I'm a registered medical practitioner. I have my license to practice. It makes a big difference that how you are handling a human. Secondly, जब आप किसी क्लाइंट के, जब भी आप न्यूमरोलॉजी करते हो, आप जब भी आप गूगल डॉक्टर कभी मत बनिए। Most of you have habit of going on Google, हाँ बस ये मेरा नंबर आ गया, ये बन गया एंड चालू हो गया। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है, आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग एनीवन, सब लोग अच्छे होते हैं, बट देन इट डिपेंड्स अपॉन वेदर दैट इज यूज्ड। काउंटर पर आपको मेडिसिन बहुत सारे मिल जाते हैं, बट इज दैट मेडिसिन गुड फॉर यू? एक ही बेनाड्रिल का कफ सिरप हो सकता है आपको चल जाए, आपके बेटे को बेटी को नहीं चले। सो डेफिनेटली आपका नंबर, अगर कोई 24 नंबर XYZ को चल गया, एक 42 नंबर का एग्जांपल, एक 42 नंबर किसी को चल गया मतलब वो सब जरूरी नहीं कि नेम नंबर 42 और किसी को चलेगा। अगर उसका BNDN अलग है, and if it is not matching, it can make a mess of his health. Last year in COVID, people have seen multi-millionaires and multi-billionaires, चाहे कितना भी पैसा हो, प्लास्टिक की थैली में बांध के गए, घर वालों ने देख भी नहीं पाए।
Health is a very important aspect whenever you are working with numerology. Most of you are numerologists. I know you all are very much expert and very much senior than me. सब लोग 20-25 साल से आप में से बहुत लोग कर रहे हो. But it makes a big difference that how you are tackling the health issues of the name. वरना आप किसी के नाम को चेंज मत करो. At least don't try to correct the name if you are not taking care of medical aspects. वरना तकलीफ होती है. I'll show you an example of medical aspects also. चलो. Sir, can I ask? Yes, please ask. Myself is Surinder Kaur. हाँ I'm जी. from Delhi. Yes. सर न्यूमरोलॉजी से 2 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे ही हैं कि हाँ. जैसे कि आपने अभी बताया कि जो ऑपोजिट नंबर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे 4 और 8, 4 और 2 और इस तरह. तो पर सर ये तो कोई बहुत बार आमने सामने आते हैं. हाँ जी, पर ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि वो हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं. वो नहीं, हमें बिल्कुल नहीं. मैंने वही कहा कि परसेप्शन क्या है आपका. कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 and 8 अगर सामने वाला अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल पर्सन born on number 4 is very practical, very impulsive, he thinks practically, he has a secretive yeah. knowledge. Myself is number 4, 22nd born, and my son is 26, and we have a very good Absolutely. compatibility आपस बस में. आपका वो बेटा है तो जी, आपका जी. वो compatibility होगा ही होगा because he is your son. The only thing is, yes, 4 and 8 के कभी कभी म्यूचुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जी. but it doesn't mean that कि ऐसा कुछ होगा. सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ नंबर हैं कुछ में होते हैं तो वो उनके लिए जरूरी है. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्पोर्ट्समैन का, जैसे सचिन तेंदुलकर के स्पोर्ट्स में 276 नंबर है, एक्शन प्लेन है उसका पूरा, और सर ये विराट कोहली में नहीं है, तीनों ही नंबर मैडम, नहीं है. तो सर very honestly, I am not a दोषो ग्रेड expert. थोड़ा बहुत जानता हूँ दोषो ग्रेड के बारे में, ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं, क्योंकि आप लोग सब दोषो ग्रेड में वगैरह सब अलग अलग विद्याओं में पारंगत है. मैं नहीं दोषो सर ग्रेड के ऐसा बारे कोई में नहीं ज्यादा है. नहीं जानता. बट जी. एक बात पक्की बता सकता हूँ कि सचिन नाम 18 पर जो उसको सक्सेस मिला है, बिकॉज इट वाज ऑफ हिज हार्ड वर्क. मैंने शुरू में जो आपको बताया 18 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स, 1 gives you leadership, 8 gives you struggle, and अभी 8 does it give you really struggle? No. 8 is a number which shows that if you struggle and if you put a right amount of hard work, Lord Saturn will help you 100% to see the results. लोगों का देखने का नजरिया ये है कि 8 पे स्ट्रगल होगा, 8 पे ये होगा. नहीं होगा. अगर आपकी नीति, अगर आपकी नियत सही है, अगर आप सही तरीके से काम करते हो, तो आपको लॉर्ड सैटर्न जैसा सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने वाला कोई भगवान नहीं है. बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे. राहुदेव, लॉर्ड राहु, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इफ योर एक्शंस आर राइट. इट कैन गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स. बट वही अगर आपके कर्म सही नहीं है तो डेफिनेटली जैसे ही लॉर्ड सैटर्न की दशा शुरू होगी तो आपको उसके रिजल्ट्स नेगेटिव मिलेंगे, बिकॉज लॉर्ड सैटर्न डिफाइंस योर कर्मा. सो नाउ विल मूव फर्दर. तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें मतलब जैसे हमने लोशो में भी पढ़ा और में सुबह पढ़ते कि एक्शन में जो नंबर होते हैं 276 है, स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छे होते हैं. तो अगर बच्चे के पास नहीं है और वो करना चाहता है तो अगर वो प्रैक्टिस करे या उसी रो में चलता जाए स्पोर्ट्स में, तो ही कैन अचीव. आई पुट इट दिस वे, 2 चीजें आपको हमेशा देखनी चाहिए कि एक तो अपने एफर्ट्स, because being a clinical hypnotherapist and a psychologist, I can say कि आपको सबसे पहले एफर्ट्स सही दिशा में डेफिनेटली डालने चाहिए, so that later on in your life you should not repent कि काश मैंने ये कोशिश की होती. When it comes to numerological perspective, definitely there are techniques to help you to balance your grade. Okay. आप खुद लोशो ग्रेड में एक्सपर्ट है मैडम, तो डेफिनेटली जब आप ग्रेड बैलेंस सर, करोगे, ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है. जब आप ग्रेड बैलेंस करोगे, रश्मि जी एक मिनट, जब आप ग्रेड बैलेंस करोगे तो यू आर टेकिंग एन स्टेप, यू आर एक्सेलरेटिंग योर लक टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. बट जैसा मैंने कहा कि आपकी होंडा सिटी ही रहेगी. इट कांट चेंज टू मर्सिडीज बेंज. Okay. It is in his destination finally. It will definitely happen. Now, does it mean that we should completely depend upon destiny? Absolutely no. Depending how exactly numerology or astrology should be used is like
जब आप घर से निकलते हो किसी दूसरे शहर में जाने के लिए तो आप जीपीएस सिस्टम लगा देते हो. जी GPS system guides you that where is the turn, which turn you have to take, how exactly you are moving ahead. Similarly, your numerology and astrology perspectives always tell you कि हाँ इस particular life के इस phase में आपको ये दिक्कत आ सकती है. So if you take a preventive measure, you will see that things are getting better. तो ये Okay. सबके लिए है कि use numerology and astrology as a GPS system of your car. आपकी लाइफ एक कार है, आप उसको अगर जीपीएस की तरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ फॉर एग्जांपल अगर मेरा डेस्टिनी नंबर 8 है, अगर 9 नंबर मेरा पर्सनल ईयर है, तो देयर आर चांसेस दैट आई माइट मीट विद सम एक्सीडेंट प्रोबेबली. जी दैट कैन हैपन. सो आई हैव टू वर्क आउट ऑन किस तरह से मैं ठीक से गाड़ी चलाऊं. ओके सर, Try to थैंक avoid. यू सर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर. Thank you. So now we'll take one small example about health aspect. जब मैं कहता हूँ so this is a small example that how your name can also help you in understanding what is happening and what is not. अभी ये फिर सभी को पता है मैडम. सोनाक्षी सिन्हा, डेट ऑफ बर्थ 2/6/1987, जिनका डेस्टिनी नंबर है बर्थ नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 6. As I said that even certain alphabets carry weightage towards your health, and I have officially published a research paper on the medical numerology for numerology and weight gain. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये मैडम का जो है फर्स्ट अल्फाबेट जो है नंबर 3 पे है, विच वाज एंटी विथ हर ओन डीएन. ये डीएन जो है उनका उसके साथ एंटी गया, प्लस विच लेड टू हर हार्मोनल इम्बैलेंस. जो उनका वेट हुआ था दैट वाज आल्सो 95 kgs. ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड है, विच इज अगेन नंबर 6. Excess of number 6 activated the thyroid glands, resulting in the weight gain. Her name also gives one more combination about the weight gain, SH. This also triggers the extra weight. तो अगर हम यहाँ पर सही तरीके से देखते हैं तो there are disease which come with to you since your birth. And every person born on the earth has all the diseases in their body. This has been proven by Dr. Bruce Lipton and various neuroscientists have proven it. But then आप बोलोगे फिर मुझे वो disease क्यों नहीं हुई? Every disease can happen to a person only when the trigger factor occurs. सभी को रैशेस नहीं होंगे, सभी को टीबी नहीं होगा, सभी को कैंसर नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा. But when the trigger factor happens, definitely you are triggering that particular issue and it can lead to that particular health issue. इसको latent disease कहा जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या मेडिकल साइंस के हिसाब से भी. Latent disease, and latent means hidden. So whenever your numbers go anti, whenever things go anti, you will see that things are happening and they show their results. As long as you are maintaining a healthy lifestyle, you will see that you are able to make a very smooth life. The day you lose your healthy lifestyle, अगर आपके numbers कहीं पर भी anti है, तो आपको उसके negative results मिलने से कोई नहीं रोक सकता. Definitely मिलेगा. सर एक क्वेश्चन कि आप किस तरह से आगे लाइफ में जा सकते हो. आपके एंटी नंबर जो हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर फेज में आते हैं तो इट कैन ट्रिगर योर लैटेंट डिजीज. Yes, someone had a question. क्वेश्चन था एक कि आप नेम न्यूमरोलॉजी को जो बता रहे हैं, तो मेरे तो 3 नाम है, एक पेट नेम है, एक मायके की तरफ से, एक ससुराल की जो तरफ से है. सबसे बुलाया जाने वाला नाम है सबसे ज्यादा, एंड जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वाइब्रेट होता है नाम, हाँ that जी, name will give you the result. ओके, ये आपका जो रश्मि महाजन जो नाम है, हाँ जी, ये आपका फर्स्ट नेम आपको रिजल्ट देगा, विच इज ऑलरेडी शोइंग द रिजल्ट्स. तो वो आपको रिजल्ट्स देगा. So any name which is vibrating on your social media, क्योंकि आपको बुलाने वाले लोग जो है वो मे बी दिन में 5-7 बार बुलाएंगे, बट जो नाम आपका सोशल मीडिया पे है, that is continuously vibrating, so that will give you the result. ओके. इसीलिए सर कहा जाता है कि आप सबसे पहले सोशल मीडिया पे नाम चेंज करा लीजिए.
ओके सर, लेकिन जो वाइब आप बता रहे हो सबसे बुलाया जाना, जैसे वोकल सबसे बुलाया जाना मायके की तरफ से तो वही पेट नेम बुलाते हैं सब, और ससुराल की तरफ से और से वो बुलाते हैं ये रश्मि ओके महाजन। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। आपको मायके वाले कितने बार दिन में कॉल करते हैं? करीब 3-4 बार तो हो जाता है। दिन में। ससुराल हाँ। वाले कितने बार कॉल करते हैं या बुलाते हैं? 3-4 बार, 10 बार? नहीं नहीं, वो 1-2 बार ही होता है। 1-2 बार। हार्डली हाँ 5 या 6 बार का इम्पैक्ट हुआ आपके दोनों नामों का। हाँ बट जी, दिस नेम रश्मि हाँ is जी, vibrating on social media 24 hours. हाँ जी, हाँ जी, So दैट्स you will ट्रू। get a result of Rashmi. ओके। Hope I have cleared everyone's confusion. जो आपका नाम सोशल मीडिया पे हुआ, बिकॉज पुराने जमाने में सोशल मीडिया नहीं था. Even if you go back to quantum physics, everything vibrates. Your name also vibrates. And when it is vibrating at a particular resonant frequency, it will help you to attract the good things. If your name is in sync, with your BNDN, then definitely things will be good. And if they are not in sync, then definitely things can go bad. Yeah, there is someone question, if they are just newborns and have not been assigned any name yet, but how will numerology predict the future in that case? जो भी ये पिया जी है, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, दैट सपोज देयर इज अ न्यूबॉर्न जिसका नाम असाइन नहीं किया है. आपका नाम असाइन बाद में किया जाता है. आपका BNDN, आप जैसे ही आप बाहर आ गए पेट में से, आपका BNDN आपको रूल करना शुरू करता है. एंड योर BN till your age of 33 to 35, your birth number controls your life. And the moment you are crossing your 35, your destiny number comes in picture. तो फिर आप चाहे किसी भी नाम से बुला दो, आपका BNDN जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है. Hope I have cleared your query, sir. सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, इसमें मुझे ये पूछना है, सपोज Sir, please अगर कैमरा ऑन कीजिए. सॉरी कैमरा ऑन कीजिए सर, प्लीज. सर मैं रोड के बीच में हूँ इस अच्छा time पे। ठीक है. सर ये मैं पूछना है, सपोज ट्विंस का सर 35 इयर्स के, अब जो आपने बहुत 35 इयर्स के एज में सारे एज सेम थोड़ी ना होंगे, सपोज सेम डेट है 33 to 35, अगेन आई एम सेइंग 33 से लेके 35 के बीच में लोगों के BNDN के रिजल्ट चेंज होने शुरू हो जाते हैं. Because it also makes a difference that what your birth chart is carrying. What I am saying is कि आपके उम्र के पहले 33 से 35 साल आपका बर्थ नंबर डोमिनेट करता है, एंड बाद में आपका डेस्टिनी नंबर डोमिनेट करता है. So whenever a child is born, his BN and DN makes a big impact on the life. उसके बाद फिर आप उसका नाम देते हो, एंड जब आपको नाम भी देना है तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू सी द चाइल्ड चार्ट. उसका नक्षत्र के नाम से, जो नक्षत्र के हिसाब से जो नाम है वो आपको लकी नेम सेट करना होता है. एंड देन यू कैन ऑल्सो सेट हिज कॉलिंग नेम ऑल्सो एज पर द लकी नेम, वरना दिक्कत डेफिनेटली देता है. सर मेरा ये कहना है, सपोज ट्विंस है सर, ट्विंस का डेट भी सेम है, टाइम भी, मतलब टाइम हो सकता है थोड़ा चेंज हो, पर सर 35 इयर्स के एज में उनका पूरे इवेंट्स तो सेम ही रहेंगे ना, मतलब नहीं, वो डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा अगर हमारे पास ट्विंस न्यूमरोलॉजी? हाँ जी, दो तरह के होते हैं सर. यस. तो अगर बर्थ टाइम दोनों का अलग है तो और अगर आप उनकी अंशात्मक कुंडली बनाते हो तो आपको डेफिनेटली वहां पर चेंज दिखाई देगा. लाइफ चेंजेस. आई हैव ट्विंस. 2 मिनट का डिफरेंस है. दोनों की लाइफ का बहुत अलग, मतलब द वे दे आर गोइंग इज टोटली डिफरेंट. एक बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल, एक बेबी बॉय. मेरे घर पर भी ट्विंस है, 2 मिनट का डिफरेंस है. सो इट मेक्स अ डिफरेंस कि किस तरह के ट्विंस हैं. तो ट्विंस के बारे में जब आपको देखना है तो आपको ये देखना ही होता है कि दोनों में अगर टाइम डिफरेंस है या नहीं. एंड टाइम डिफरेंस के बाद आपको उनका चार्ट डेफिनेटली बनाना पड़ता है, उनकी जनन शांति करनी होती है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दैट. अच्छा सर, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी इसमें हेल्प कर सकती है, न्यूमरोलॉजी का रोल नहीं? In case नहीं, न्यूमरोलॉजी will help you, but you have to take help from an astrologer also. Also for time, for exact time. हाँ, जनन शांति के हिसाब से ट्विंस की जनन शांति करनी जरूरी होती है. You have to do it. It helps the twins in a better way.
सर अभी किसी का बर्थ BN एंड DN सेम है तो लाइक Sir, I have heard time. Hello, हाँ जी, sir. I have heard there is something called time numerology. तो time numerology से ये इनका आप पता कर सकते हैं क्या, मतलब times sir, का? I have honestly not heard about time अच्छा, मतलब numerology. ओके सर, I थैंक have यू. not heard about it, so I am not the right person to comment on it. जो चीज पता नहीं है उस पे उसके बारे में I would not comment. जी जी हाँ जी, बिल्कुल. नितिन जी, yes, थैंक यू फॉर योर हेल्प. yes sir. सर नितिन जी, अभी किसी का BN और DN सेम है तो लाइक टिल फर्स्ट 33 35 व्हाट यू सेड बाद में भी मान लो वही सब- आएगा, बट आपका फिर नेम नंबर जो है वो मैटर करेगा. आपका लाइक नेम जो है, पहले 33 35 इयर्स स्ट्रगल में ही गया तो बाद में वाला भी स्ट्रगल में सेम जाएगा, कैसे होगा? बाद में अगर आपका नेम नंबर जो है, नेम का जो कॉम्पोजिशन है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, बिकॉज एवरी Okay. एलिमेंट ऑफ योर नेम ऑल्सो डिफाइंस द लाइफ स्पैन ऑफ दैट अल्फाबेट. ओके आपके नाम में जितने अल्फाबेट्स हैं, हर अल्फाबेट का अपना लाइफ स्पैन होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट लाइफ स्पैन यू विल सी योर रिजल्ट्स. तो जो जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरा BN DN सेम है और मेरा नाम ये है, तो I can very openly tell that your alphabets have a lifespan, every alphabet, and based on that lifespan you will see those results. Numerology, that's the reason I said there don't be Google doctors. Every alphabet has a lifespan, and after that lifespan the second alphabet takes over, and based on that alphabet you will see your results. तो सर ये कैसे Definitely changes कैलकुलेट होते हैं. करेंगे? क्या सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ये आ जाएगा जब नेम न्यूमरोलॉजी जब एक डेप्थ में देखते हैं तो डेफिनेटली इट इज डन, बिकॉज इट्स फाइनली सी न्यूमरोलॉजी इज अ वास्ट ओशियन. जब आप सीखते हो तो इट मेक्स अ डिफरेंस कि आप किस हद तक जाके सीखते हो. नॉट एवरीवन कम्स इनटू मेडिकल न्यूमरोलॉजी, नॉट एवरीवन कम्स इनटू स्पोर्ट्स न्यूमरोलॉजी. कुछ लोग स्पेसिफिकली शेयर मार्केट पे काम करते हैं, कुछ लोग हेल्थ पे काम करते हैं. एवरीवन हैज देयर ओन एस्पेक्ट्स, बट एवरी अल्फाबेट हैज अ लाइफ स्पैन. जो नितिन जी का क्वेश्चन था कि BN DN सेम है, उस केस में आपके अल्फाबेट्स मैटर करेंगे, उसका लाइफ स्पैन मैटर करेगा. सर नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक चीज पूछी थी मैंने. एक एक्सपेरिमेंट किया था. हाँ जी, देयर वाज अ टेलीकॉलर आई हैड विद अ बर्थ नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 1, ओके और फर्स्ट नेम टोटल 8 पे था. ओके. मैंने उसको कहा तुम अपना जो टेलीकॉलिंग नेम है वो तुम चेंज करो, तुम मीरा के नाम से नहीं, तुम निशा के नाम से कॉलिंग करो, बिकॉज निशा कम्स टू 15 6 पे. आपने पेड किया था या फ्री किया था? सर मेरी एम्प्लॉय थी ना, मुझे तो अपने अच्छा, लिए हाँ, फिर करना था. फिर ठीक है, वरना मेरे आपको को- 10 कॉल ऐसे आने चालू हो जाएंगे सर, मेरा भी कर दो करके. कि मेरे सेल्स बढ़े, बट वो नहीं फ्रूटफुल हुआ. बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. सिर्फ नाम चेंज करने से नहीं होता है या नंबर चेंज करने से नहीं होता है. यू हैव टू सी वेरियस फैक्टर्स, प्लस जिस कंपनी में वो काम कर रही है उस कंपनी का जो नंबर है वो भी उसके लिए सही है या नहीं, सर ये वो भी तो मैटर मतलब- करता है. I'll put it this way. A person who is, say for example, बहुत अच्छा, सपोज 19 पे फर्स्ट नेम है, बहुत अच्छा नाम है, जी. but then if this person probably goes to Amritsar for job, या probably goes to गुजरात जहां पर 17 नंबर, अब 19 वाला जो है ये 1 है, गुजरात में है. जाएगा तो he will see all the traits of 1 and 8 जहां पे उसको जॉब में स्ट्रगल आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है. So now should he leave that job? No. Now he has to change his attitude. He has to be ready for slogging further and put honest efforts and take the results of it. क्योंकि आप गुजरात जाके वापस ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं मेरा तो यहाँ 17 नंबर 8 नंबर पे बनेगा नहीं. Be ready for working hard, you will see the results. So आप जब देखते हो कि कुछ लोग जो है वो दिल्ली में तो बहुत अच्छा कर रहा था, जैसे ही कंपनी का ट्रांसफर बैंगलोर में हो गया, जॉब चली गई बंदे की. कभी आपने ये देखा कि बैंगलोर का टोटल क्या था बेंगलुरु का? Was it really matching him? करियर में भी न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा मदद करती है, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स योर एंटायर लाइफ. कुछ लोगों के लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है,
शादी होने के बाद जैसे दूसरे सिटी में चले गए, या हस्बैंड एंड वाइफ का BNDN मैच नहीं हुआ, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज एवरी नंबर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अबाउट व्हाट हैपन्स. किसी ने लिखा है BN is 8, DN is 6, my full name number is 48. मैडम, डू यू हैव पूनम सांगल जी? हेलो. हाँ, पूनम सांगल जी, आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ. यस सर. कैन यू प्लीज कम ऑन द कैमरा? सर, I can just talk to you not on camera, please. नॉट अ प्रॉब्लम. तो आपका BN है 8 एंड DN है 6. व्हाट इज योर बर्थडे, व्हाट इज योर, आपका फुल नेम क्या है? 48 पे 3. व्हाट आर द हेल्थ इश्यूज राइट नाउ यू आर फेसिंग? वेट बढ़ गया, वेट का इशू है? वेट, Yes, yes, weight and thyroid. weight Yes, and thyroid, yes, because correct. your name number is showing that you have to be very careful about your central obesity and thyroid related issues. You have to get your name 100% corrected. correct. You have to get your name corrected, and Yeah. ये आपको एज ऑफ 35 के बाद ज्यादा शुरू हुआ होगा. उसके Yes, पहले correct, sir. कम होगा, बट 35 के बाद डेफिनेटली ज्यादा शुरू होगा. I would definitely recommend you to get a consultation from a right person to get your name corrected. 48 नंबर पे आपको प्लस इश्यूज देगा वो बाकी पर्सनल लाइफ में भी. सो इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, आप प्लीज नेम करेक्ट करा लीजिए. थैंक यू मैडम. Sir, first name is Hello. on first name is on 532. न कोई दिक्कत तो नहीं. does that- आपका जो फुल नेम है ना, Yeah. फुल नेम जो है वही दिखा रहा है आपका थायराइड एंड इसके इश्यूज. फाइनल आपका फुल नेम जो So है वो what should दिखा रहा be है. the total number? टोटल नंबर, यस, 48 नंबर जो है, 48 वाला 3 जो है, ये दिखा रहा है आपके थायराइड एंड वेट गेन के इश्यूज. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. प्लीज करेक्ट योर नेम. सर ये वेट गेन Hello. इश्यूज क्यों थायराइड के दिखा रहे हैं? Okay, बिकॉज sir. ऑफ Thank you so 4 much. and 8 और बिकॉज ऑफ द रिजल्टिंग 3? सर देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन द नेम आल्सो. उनका नाम भी दिखा रहा है वेट गेन के टेंडेंसीज. उनका जो खुद का नाम है वो दिखा रहा है कि वेट गेन के टेंडेंसीज है, प्लस तो वो 3 से BNDN के कैलकुलेशंस में भी दिखा रहा है. सर नेम में से हम वो जो वेट गेन है वो 3 में से ही लेंगे ना? 4 और 8 का भी रोल है उसमें या फिर? सर बहुत सारे फैक्टर्स है. 4 and 8 भी आता है नेम के वेट के लिए, बिकॉज इट Okay. शोज दैट व्हाट फैक्टर्स हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द लाइफ. तो विल टेक वन. अभी मैं आपको कुछ जिन लोगों को, ऑफ कोर्स देयर आर वेरी सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट, बोल मत होना. So when it comes to birth number and destiny number, how do we calculate? क्योंकि कुछ लोगों का डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन होगा कि कैलकुलेट कैसे करें. What is your BN and what is your DN? Birth number is the date where you are born. Suppose if you are born on number 1 or number 10 or number 19 or number 28, तो आपका BN आएगा 1. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो टोटल है, that is considered as a DN. That is your destiny number. So the entire world can change, but your BN and DN can't change. Of course, आजकल लोग fake birth dates भी लगाते हैं, but then that doesn't give you the result. शादी के लिए भी जो झूठे पत्रिका बनाते हैं, ऐसी शादियां कभी चलती नहीं है. So BN is the day you are born. DN is the total of your date. एंड BN DN जिस दिन आप पैदा हुए हो उसके साथ आपके लाइफ में आगे रहेंगे. यहाँ पर अगर आप आपकी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगर आज कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ के सारे इवेंट्स जो हैं ये इन BN DN के आसपास डेफिनेटली मिलेंगे. इवन हो सकता है आपके स्पाउस का नंबर, आपके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ, आपके कुछ जिस दिन शादी हुई वो वाला डेट, जिस हॉल में शादी हुई वो, जिस रास्ते में या जिस घर में आप रह रहे हो. You see how your numbers are syncing with your name. Definitely आपके BN DN के साथ होता है. अगर BN DN के साथ नहीं हुआ तो आगे मैं नेम न्यूमरोलॉजी के जो टोटल शैलियन का चार्ट है वो भी शेयर कर रहा हूँ, वहां पर डेफिनेटली होता है. So how to calculate your BN and DN? So if someone is born on 22nd Jan 1974, तो BN आ गया आपका 22 and DN आ गया 26/8, like 4 and 8 का DN आ गया, BN and DN. और आपका BN and DN ही आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है. अब इसके लकी नंबर्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम डेफिनेटली नहीं जाएंगे, बट एज अ थंब रूल व्हेन वी से कि जब आप एनालाइज करते हो किसी का भी नेम
तो जनरली इट इज कंसिडर्ड एज कि 1, 5, 6 पे जो नाम आते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, मैं भी उनको अच्छा मानता हूँ, बट इट मेक्स अ डिफरेंस कि वो कौन सा वाला 1 है एंड किसके साथ बना हुआ है। 19 वाला है, 28 वाला है, 37 वाला है, 46 वाला है, 55 वाला है, 64 वाला है, because people just go with the lucky number. Is it really in sync with your destiny number? Is it really in sync with your name number? Is it really in sync with your birth number? ये सारे पैरामीटर जब तक आप नहीं देखते हो तब तक दिक्कतें हो सकती है। Most of the people who see the problem, most of the people who see things going bad, they can see that their names are not in sync. यहाँ पर रश्मि मैडम ने लिखा है इनका BN9, DN7, 34. Rashmi madam, I would request you please do take care of your health issues to a certain extent, क्योंकि chronic health issues अगर होते हैं तो तकलीफ होगी। Please do take care of your chronic health issues long term में, वरना वो impact कर सकते हैं। तो now BN2 भी है, BN2, DN4, definitely it's a good number. But again, it matters that what is your name number. वरना BN2 के हिसाब से you can say that you are please mute yourself. BN2, DN4 के हिसाब से definitely आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। BN2, DN2, NN2, how to correct. Madam, it is not about correcting the name. It also depends upon कि आपका 2 कौन से नंबर पे है. That's the reason I said that don't be Google doctors. कौन सा वाला 2 है ये बहुत important है कि 2 है, 11 है, 29 है, 38 है. It makes a big difference that what will happen. Sir, now मेरा BN is also 2 and DN is also 2, like birth name 2nd July 1982. So So your first name is is also 2. your name is also showing that you need to take care of your headache. Plus also too much of emotional disturbances can give you headache related issues, pain ज़्यादा देगा. You have to take care of your headache. आपका नाम भी दिखा रहा है कि too much of, if you ignore your headache, it can create a chronic pain. So please headache का ख्याल रखिए आप. Okay. Sir, my BN is 7 and DN is 2. Hello, sir. हाँ सुन रहा हूँ मैं. Sir, my name is Mahendra, sir. I have talked to you. Yes. Sir, my Mahendra Bhisht from yes. Dehradun. Dehradun. Yes. Yes, sir. Sir, BN is 7, sir. DN is 2, sir. और अभी आपकी एज क्या है? Sir, mine is 41, sir. 1980, sir. So definitely you must have seen that you are too much, you have been too much emotional after age of 33 or 35. जहाँ पे Yes, बहुत sir. ज़्यादा इमोशनल हो गए आप, जहाँ पहले आप प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा जो आपका वेरी ऑनेस्टली में भी ऐसा नेचर था कि आप ज़्यादा खुल के किसी से बात नहीं करते थे. आफ्टर एज ऑफ 35 you must have changed a lot. So do work on that, but try to keep some things for yourself, or else people can backstab you. नुकसान हो सकता है बिजनेस में. बहुत ज्यादा ओपन अप होने की जरूरत नहीं है, वरना नुकसान होगा बिजनेस में. यू हैव योर क्लासेस यू हैड मेंशन्ड. Right, sir. ध्यान देना. Yes, sir. I'll come back to you, sir. यस डेफिनेटली, प्लीज थोड़ा ध्यान देना. So if we see one more example for health issues. चलो और एक एग्जांपल शेयर करता हूँ. मे बी as I had said about latent health issues. सांप को सब जानते हैं. His latent health issue of weight gain started because of various other anti-combinations, which even included the anti-combinations of with his spouse. We are not here to comment on anyone's personal life, but how anti-numbers definitely creates problems. To give the trigger, यहाँ इनके नाम में जो SH का फैक्टर था, it gave him the tendency of gaining the weight. जो फर्स्ट नेम में जो SH का फैक्टर है, इससे इनका वेट डेफिनेटली बढ़ा, बट ये वेट इनका बाद में बढ़ा when the trigger factors came into picture. If you see him in his early movies, he was a slim and trim person. But जैसे ही इनके एंटी नंबर्स पिक्चर में आने लगे,
all the things happened with him, and finally we lost him because of the CVD health issue. Cardiovascular disease हो गई and we lost him. Because latent disease जो होती है आपकी, ये आपके नंबर्स पे डिफाइन करती है, आपके लाइफस्टाइल पे डिफाइन करती है. अगर आपकी लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं है तो डेफिनेटली इट कैन क्रिएट an impact on your things. Now I am coming up with a course on name numerology, where I'll be covering everything right from the scratch. कि जहाँ पर आपका BNDN से लेके मेडिकल न्यूमरोलॉजी तक सब कुछ कवर करने वाला हूँ. Now does it mean that it is the end of numerology? Absolutely a big no. This course will help everyone to understand the numbers, to understand their medical implications, to understand how your life, at least आप खुद की भी अगर life change कर सकते हो समझ के. It's not necessary that you do your name correction, but if you are able to understand that what factors are affecting your life, you will see that your life is becoming much easier. Medical numerology definitely cover की जाएगी. Career, yes, and न्यूमरोलॉजी में जो चाहिए, जितनी चीजें होनी चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपको एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बना सके, वो सब चीजें कवर की जाएंगी. पर उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बी कवर्ड इज हाउ टू सेल योरसेल्फ. न्यूमरोलॉजिस्ट तो आप बन गए, बट क्लाइंट्स कहाँ से लाओगे? हाउ टू एंगेज योरसेल्फ विद द क्लाइंट्स, हाउ टू टॉक विद द क्लाइंट्स, हाउ टू जनरेट दोज रिपोर्ट्स इन द राइट वे. क्योंकि मैं सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP ट्रेनर हूँ. विल बी ऑल्सो वर्किंग ऑन द हिप्नोटिक कमांड्स की किस तरह से आपको बात करनी चाहिए क्लाइंट से, किस तरह से क्या क्या चीजें करनी चाहिए. पूरा 23 दिन का कोर्स है. एंड वेरी ऑनेस्टली दिस कोर्स इज ओनली फॉर पीपल हु रियली वांट टू डू द असाइनमेंट्स. 23 दिन का कोर्स होने के बाद डोंट एक्सपेक्ट कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा. सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे. और डेली हफ्ते में 3 या 4 दिन क्लास होने वाला है. असाइनमेंट्स डेफिनेटली आएंगे एंड असाइनमेंट्स करने ही पड़ते हैं, वरना थिंग्स वोंट वर्क. जस्ट जॉइनिंग द कोर्स फॉर हेक ऑफ सर्टिफिकेट विल डेफिनेटली नॉट हेल्प एनीवन. उसके बाद भी जिन लोगों ने मेरे पहले कोर्सेज अटेंड किए हैं न्यूमरोलॉजी के, दे कैन वाउच ऑन इट. 100 सैंपल सबमिट किए थे तब जाके उनके सर्टिफिकेट्स उनको रिलीज हुए हैं. सो असाइनमेंट विल बी डेफिनेटली टेकन, उसमें कोई चॉइस नहीं है. आई शेयर द डिटेल्स ऑफ दैट कोर्स. अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बनाया बिकॉज आई एम नॉट शेयरिंग एनी कंटेंट्स ऑफ दैट कोर्स. विल बी डूइंग बिजनेस नेम, मैरिज नेम, मेडिकल एस्पेक्ट्स, किस तरह से आपको बिजनेस शुरू करना है, न्यूमरोलॉजी में आगे कैसे बढ़ना है, राइट फ्रॉम योर फेसबुक पेज टू योर यूट्यूब चैनल. एवरीथिंग विल बी डन इन द क्लास. लास्ट के 3-4 क्लासेस जो है वो स्पेसिफिकली उसके लिए होंगे कि आपको लॉन्च करना ही करना है. इफ यू वांट टू डू इट प्रोफेशनली. प्रोफेशनली नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, बट जिन लोगों को प्रोफेशनली करना है दे विल बी डूइंग लाइव खुद का यूट्यूब का चैनल, खुद का फेसबुक का पेज. क्योंकि मेरा खुद का यूट्यूब का चैनल मैंने जिस मेहनत से शुरू किया था, टुडे आई हैव क्रॉस माय 1000 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट. धीरे धीरे बढ़ रहा है. यू कांट एक्सपेक्ट कि एक दिन में मिरेकल हो जाएगा, बट एक बात पक्की बता सकता हूं कि यू कैन, योर नंबर्स कैन, यू विल बी एबल टू डिकोड एनी नेम by seeing the name, by seeing the alphabets, by seeing the what exactly is happening in the life. इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं. जिस किसी को भी डाउट होगा कि नहीं होगा, 100% fees will be returned if you are not seeing the satisfaction after 23rd lecture. That is my word here, right on the camera. Condition applied is डेली असाइनमेंट्स होने ही चाहिए. If you are completing your assignments and still after that if you are not able to analyze your name, or if you are not able to do the things, and if you are honestly saying that yes, I am not seeing any results out of this, your entire fee will be refunded.
एब्सोल्युटली नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछूंगा कि आपने असाइनमेंट किया है क्या। असाइनमेंट करने के बावजूद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स, your entire fee will be transferred back to your Google account or wherever you pay without any question. Very open offer. आज तक किसी ने न्यूमरोलॉजी में दिया नहीं है. 100% fees will be refunded. The only condition is assignments compulsory करने हैं. And whoever is looking forward, definitely ये जो fees है, it's a good fees for 23 पूरे lectures के लिए. इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये फीस इतनी ज्यादा है, कम है. इट इज अ गुड फीस. बट देन टुडे आई हैव एन ऑफर फॉर एवरी वन ऑफ यू हु वांट्स टू जॉइन दिस कोर्स. टुडे दिस फीस विल बी ओनली 7,500 रुपीज इफ यू आर बुकिंग इट. एंड ये आपको पूरी फीस वापस मिलेगी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो कोर्स से. तो लिख के ऑन द रिकॉर्ड, एवरीवन इज हियर. So if you are booking it today, you can definitely do a Google Pay. 23 घंटे का पूरा लेक्चर है, 23 घंटे का पूरा क्लास होने वाला है. एंड रिजल्ट्स आई गारंटी कि आपको आएगा. So anyone who is open to take up this challenge with the fee refund policy, complete 100% fee. चूंकि you can Google Pay, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर है. I'll put my number also. I'm just putting it in the chat box. And ये सिर्फ आज के लिए ही फीस है. Those who are attending this, बाकी लोगों के लिए ये फीस नहीं है. बाकी सबके लिए 10,500. It's because you have attended the class. And I'm 100% saying पूरी फीस आपको वापस दी जाएगी विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड. अगर आपको लगता है कि नहीं भाई विवेक ने कुछ नहीं सिखाया, एब्सोल्युटली होता ही नहीं है सर. नहीं, वो कुछ लोगों को होता है कभी कभी. सो नो क्वेश्चंस आस्क्ड टू देम. सो एनीवन हु वांट्स टू बुक इट कैन बुक इट, क्योंकि ये आज का ऑफर है. कल से वापस फीस 10,500 होगी फॉर श्योर, बिकॉज 10,500 इज ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल फीस फॉर अ कंप्लीट 23 आवर्स कोर्स. बट यकीन मेरा है कि आप विदर्श जी, आई एम एडिंग यू इन द ग्रुप, क्योंकि ऑलरेडी 7-8 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. ग्रुप इज ऑलरेडी फॉर्म्ड. 7 or 8 पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड. आपको ऐड कर देता हूं सर. जस्ट व्हाट्सएप, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए. सो एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड. सेकेंडली, नाउ हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू. न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू टू मेक एन ऑल्टरनेटिव करियर. आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप अगर किसी का नाम देख के अगर किसी को कुछ बता सकते हो ना, तो दैट इज लाइक अ बिगेस्ट कैचिंग पॉइंट फॉर यू. नाम देख के अगर आप किसी को बता सकते हो कि हाँ भाई तेरे लाइफ में ये चल रहा है, तो डेफिनेटली यू विल सी दैट पीपल विल कम बैक टू यू. यू कैन बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. इफ यू आर ऑलरेडी इनटू अ साइकोलॉजी फील्ड, you can guide people on their career. If you are into a relationship counselor, you can help people to make people's married life better. If you are into any profession where you are dealing with people, चाहे वो HR हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों का नाम देख के डिसाइड कर सकते हो कि इसको हायर करना है या नहीं. Because their name number will decide कि कौन सा नंबर R&D के लिए फिट है, कौन सा नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिट है. For example, if you are taking a number 5 person in the R&D, your R&D business will never work. For sure काम नहीं करेगा. बिकॉज नंबर 5 हैज अ फिकल माइंडेड स्टेट. उसका बहुत ज्यादा चंचल होता है माइंड, वो R&D का काम कर ही नहीं सकता है. सो इट विल ऑल्सो हेल्प एवरीवन हु आर इनटू प्रोफेशन टू मेक द थिंग्स हैपन. नाउ व्हेन इट कम्स टू मेडिकल न्यूमरोलॉजी, वी विल बी डीलिंग विथ ह्यूमन एनाटॉमी, how exactly human anatomy works, how exactly body's fight and flight mode works, how do the numbers impact on human body, एंड किस तरह से आपको नेम करेक्शन करना चाहिए सो दैट द थिंग्स गेट बेटर. कौन से नंबर पे, कौन से ज़ोडिएक पे क्या हो सकता है, विल बी गोइंग इनटू दैट डेप्थ. एंड आई एम श्योर अबाउट दिस दैट लर्निंग फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज प्रैक्टिसिंग इट will help you in a much better way in understanding the medical numerology. बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा. That I can guarantee.
मेरे पास अपना लाइसेंस है, आज तक कभी मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, बट आई एम अ लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर. So definitely it will help you to understand human anatomy and medical numerology at a different level, for sure. बाकी आप फिर चाहे किसी प्रोफेशन में है, हाउसवाइफ है, अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, definitely it will help you. Even if you generate a name numerology report हाथ से लिखा हुआ, still you can charge not less than minimum 1,500 for any chart, handwritten report. And name numerology नॉर्मली फीस कितनी होती है? नाउ देयर वर आल्सो क्वेश्चंस कि नेम न्यूमरोलॉजी की फीस कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, क्यों रखनी चाहिए? इट इज आल्सो एवरीवन्स चॉइस, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, इफ यू डोंट वैल्यू योर सर्विसेज, नो मैटर इन विच फील्ड यू आर, इफ यू डोंट वैल्यू योर सर्विसेज, यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड. सो अगर आपको सही में न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, एंड सही में अगर आपको, इफ यू रियली वांट टू मेक अ प्रोफेशन आउट ऑफ इट, यू हैव टू सेट योर बेंचमार्क कि हाँ मैं इतनी फीस रखूंगा या रखूंगी, एंड उसके लिए चाहिए आपको कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे ये क्यों. तो डेफिनेटली विल बी डूइंग सम हिप्नोटिक सेशंस आल्सो फॉर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि किस तरह से होता है. सेकेंडली, देयर आर आल्सो टेक्निक्स इन हिप्नोथेरेपी which help you to align with your numbers, जो आपको सिखाई जाएंगी. यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ that how to talk to your numbers. हिप्नोथेरेपी में आते हैं कुछ लोगों ने पहले भी मेरे से कुछ 1-2 कोर्सेज किए यहाँ पे हिप्नोथेरेपी के. they have seen the results. You can actually talk to your numbers and you can actually get those intuitions कि हाँ इस नंबर पे ये होगा. how to program your mind to be a successful numerologist. That will be my responsibility. And जिसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, as I said, आपकी फीस वापस देने की जिम्मेदारी मेरी है. But 23 courses, 23 lectures, assignments, final submission, all yours. जिसको पसंद नहीं आता है वो तो finally we have everywhere. कि नहीं पसंद आया तो no questions asked. अब आगे किसी को कोई questions है, you can please ask your questions. I am open for all the questions. I have. Sir, there is my question, sir. क्या सर? Like for say, I don't know if it is definitely must be having with other people also, that we are called by different names at different places. Like for say, our neighborhood have a different name. Our relatives जिस नाम have से a आपको सबसे ज्यादा बुलाया जाता है, जैसा रश्मि मैडम ने क्वेश्चन पूछा था, उसी नाम के सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस मिलते हैं. फिर आपको 100 लोग 100 नामों से बुलाएंगे. I'll put it this way, कि आपका एक पड़ोसी आपको राम बुलाता है, दूसरा श्याम बुलाता है, बट अगर आपका सोशल मीडिया पे जो मैक्सिमम वाइब्रेट होने वाला नाम महेंद्र है, तो आपको महेंद्र के ही रिजल्ट्स मिलेंगे, राम श्याम के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. Even though, sir, my friend, like for say, there is one of my friend who sometimes call me Bist. Sometimes call नहीं me नहीं मिलेंगे Mahendra. उनके रिजल्ट. जो नाम आपका सोशल मीडिया पे वाइब्रेट हो रहा है, जो मैक्सिमम सब जगह देखा जा रहा है, उसी का आपको रिजल्ट मिलेगा. Okay. And sir, there is one more question, sir. Hmm. Sir, जैसे sir, whenever we count name, sir, the name is made up of either three words. That's Mahendra है, एक बिस्ट है, तो 2 हो गए ना सर. क्या बोलेंगे, वर्ड ही बोलेंगे ना सर इसे पूरा? हाँ, तो आपका फर्स्ट नेम सबसे ज्यादा मैटर करता है, पूरा नाम भी मैटर करता है. योर फुल नेम मैटर्स, फर्स्ट नेम आल्सो मैटर्स. Yes, sir. So when we, sir, put up all the numbers according to these letters, sir, तो सर इसमें एक कंपाउंड नंबरिंग भी आ जाता है और एक सिंगल नंबरिंग भी आ जाता है. सो रेजोनेट कौन होता है सर? सर दोनों नंबर्स होते हैं. प्लीज डोंट बी अ गूगल डॉक्टर. ये आपका नेम कैलकुलेशन का शैलियन का चार्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो आपके नाम के लिए. सर यस सर. डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो. आप सब लोग, मैक्सिमम जो लोग गूगल डॉक्टर्स भी हैं, वेरी ऑनेस्टली, प्लीज डोंट बी गूगल डॉक्टर्स. इट कैन रिस्क योर लाइफ. थिंग्स चेंज इमीडिएटली. प्लीज डोंट बी गूगल डॉक्टर्स. ये आपका नेम कैलकुलेशन का चार्ट है. आपका जो भी नाम है, आप इसमें से अल्फाबेट्स उठा सकते हो, एंड उस हिसाब से आपके नंबरिंग सिस्टम आएगी. अब Yes, sir.
इंपॉर्टेंट है आपका नेम करेक्शन का टिप. Your first name should always be in sync with your BN and DN, no matter what. Second tip, same. Your full name should be in sync with your BN and DN. And the most important thing is avoid excessive repetition of alphabets, or else you are sure to have health issues. For sure. If you are repeating the alphabets, definitely they will give you the impact based on their placements. Based on their placements. Sir, there is one more question, sir, if we can take. Sir, like for say you told me that my DN number which is coming now 2 is affecting me after 35 years. हाँ 33-35 के बाद आया होगा पिक्चर में. हाँ Yes, sir. So now if I bring my number to 2, so that will make me more emotional, or it is going to help me, sir? सर थोड़ी देर पहले मैंने वही कहा था कि कौन सा वाला 2 है, वो डिपेंड करता है. 2 है, 11 है, 29 है, 38 है. सो डोंट प्ले विथ योर नेम, प्लीज डोंट प्ले विथ योर नेम. जस्ट ब्रिंगिंग टू नंबर 2. ऐसे कितने ही 42 वाले मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनका नेम नंबर 42 है, बट हॉस्पिटल में डिजीज से झगड़ रहे हैं. बिकॉज इट मैटर्स दैट हाउ एग्जैक्टली द नंबर्स आर प्लेस्ड. Not every 42 will have a best of best health or the best of best money. So please don't play with your numbers, don't play with your names. Not every 37 will see the success. ऐसे बहुत से 37 है जो thyroid and health issues से struggle कर रहे हैं. So please don't play with your names. Don't come with the particular thing कि हाँ ये देख लिया, because half-baked knowledge is always dangerous. It can create a big mishap in your life. बाकी तो decision सब आप लोगों का है. So this was an offer from my side. Of course, और भी अगर किसी को कोई questions है तो definitely आप पूछ सकते हो. Because I am committed to deliver more than what I am being paid for. कोर्स के contents मैंने बनाए नहीं है, ना ही मैं बनाऊंगा. जो मैंने बताया है यहाँ पे, वो definitely उससे 10 गुना ज़्यादा आप सीखोगे. कोर्स के contents नहीं बनाने के reason बहुत है. Again, there were few questions from few people जिन्होंने 1-to-1 पूछा था. Chronology. I am not covering chronology very honestly, because for me, numerology. For everyone who wants to learn name numerology, medical numerology, are most welcome. क्योंकि medical numerology मेरा commitment है कि आप उसमें सीखोगे. Whatever you are learning, you will be able to decode कि हाँ ये चीजें क्या होती है, कैसे होती है. For sure. So this was from my side. Sir, implementation को लेके क्वेश्चन है प्लीज. हाँ जी. जैसे अब मेरे केस में Facebook is not allowing me even आगे जाके भी, वो 60 days वाला भी फंडा नहीं है, वो कुछ और इश्यू है उनका टेक्निकल. कभी उन्होंने पूछा होगा कि डू यू कंफर्म योर नेम, मैंने यस कर दिया होगा बिना जाने उसका लॉजिक. तो अब वो क्योंकि मैं कंफर्म कर चुका हूँ, आप वापस केस फेसबुक के क्वेरी पे डाल दो. उनका जो क्वेरी ग्रुप है ना, वहाँ पे आप कस्टमर केयर से कर दो. दे विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड. वो करते हैं रिस्पॉन्ड फेसबुक वाले. ठीक है. नहीं तो मैं एक ऑल्टरनेट सोच रहा था कि सर नया अकाउंट या उसको छोड़ के ये नया पेज कर सकते हो अगर आपका टोटली नया पेज बनाते हो. जो न्यूमरोलॉजी, बट देन यू विल हैव टू सस्पेंड वन पेज. ओके. नहीं, दोनों वाइब्रेशन एक साथ नहीं जा सकते. ओके मैं पता ये सोच रहा था कि वो पुराने अकाउंट को पड़ा रहने दो और न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए नया पेज बना के उस पे पेड बूस्टिंग करवा दो. वो भी कर सकते हो. ओके वो भी कर सकते हो. ठीक है. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस न्यू नेम सर. इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट अलग है, पता नहीं क्यों. शायद पहला नाम इतना इमोशनली अट्रैक्ट नहीं करता था जितना ये करता है मुझे खुद को ही. ये आपके लाइफ को बहुत आगे लेके जाएगा, चिंता मत कीजिए. आई एम सीइंग द इनिशियल पॉजिटिविटी आल्सो. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज ऑनेस्टली सर इस नेम को अडॉप्ट करने से पहले ना मुझे अंधकार दिखाई दे रहा था. चिंता मत कीजिए. मोहम्मद फारूक फ्रॉम पाकिस्तान. मोहम्मद जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिए, स्पेशली एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. Please see that misunderstandings don't happen in relationship. And पेट का ख्याल रखिए.
that not ये- infections or allergies happen, but main is avoid any sorts of misunderstandings. जी People सर, can misunderstand you जी सर, मोस्टली ऐसा ही होता है। क्योंकि आपका नाम जो दिखा रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा दे सकता है। लाइक आप एक्स बोलोगे, सामने वाला वाई सुनेगा, जी तो ठीक है प्लीज सर। थोड़ा सा ध्यान रखिए। देन देयर इज वन मोर, पंकज राजदान। Pankaj Razdan, can you come on camera if possible, please? Pankaj ji, I can say one thing, that no matter what, you believe in your life to be a self-made person. 18 है, आप सेल्फ मेड बनने की हमेशा कोशिश करोगे, एंड हमेशा आपने पूरी कोशिश भी की होगी कि आप एक सेल्फ मेड राइट फ्रॉम द स्क्रैच, जैसे फिनिक्स होता है वैसे। बट वन मोर important thing I would love to tell you, that please take care in terms of financials. Any single wrong step in terms of finances can give you big losses. प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए फाइनेंशियल्स में, or else it can give you big losses and other problems. Your name number 40 can create problem for you. थोड़ा सा ध्यान दीजिए डॉक्यूमेंट साइन करते हुए। ज्योति मोहराना, any suggestion for BN8 DN7? So as long as you are using your logic and being honest with yourself, Jyoti ji, you will see that life is helping you out in everything, and plus your number says that you must be working with software industry, जहाँ पे आप काफी Yes. आगे जाओगे। So continue with your software industry, आपको हमेशा इसमें फायदा रहेगा। Thank you so much, sir. Welcome sir। And sir, one more question I have. हाँ जी। Like, I have weight problem. Like, I'm putting on a lot of weight. So does this relate to anything in my number? Yes sir, your name is showing that you have a weight related issue, and especially if you, like, you have to be very careful about your legs also. थोड़ी घुटने से नीचे पैरों की एक्सरसाइज कीजिए, वरना आपको घुटने में पैरों में आपको बहुत बार ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह होता होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। Yeah, I'm getting that. Your Right. name, your first name itself is showing that you are having the problems related to tingling in your legs, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, it has to be worked upon. Sure. Thank you. Okay, सर हाँ जी। सर BN8 है, DN8 है, फर्स्ट नेम जो है वो 8 पर है, फुल नेम हाँ। जो है वो 7 पर है। क्या 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 कर सकते हैं? कौन है? BN is 8, हाँ। DN is 8। हम्म। फर्स्ट नेम जो है कोमल, दैट इज ऑन 8, 17 वाला 8। किसी अच्छे नेम न्यूमरोलॉजिस्ट से प्लीज नेम सही करा लीजिए, जो भी आपको सही लगे, Okay. but correcting the name is Okay. most important. Please get your name corrected from a right numerologist. बहुत सारे अच्छे लोग हैं, प्लीज करा लीजिए। Okay, सर sir. मनोज, मनोज जी नमस्ते। नमस्ते सर। यस सर, कहिए। सर BN9 है, DN7 है। TN9 TN7, and अभी आपका एज क्या है सर? 49। So if you see your initial years, you must have seen lots of struggles, initial, and after age of 35, lots of things are improving for you. But still, when it comes to your health and responsibilities, they are just adding on. हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए सर। DN7 है ना, डेस्टिनी नंबर 7 है ना, हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। But yes, now your life must have been much better after age of 35 as compared to your childhood. Things must have improved. Yeah, it was better, but unfortunately lost my job हाँ। last November। अभी 1 साल हो गया है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही है। आपका फुल नेम क्या है सर? मनोज? I use it मनोज जी नायर जी, फादर का इनिशियल यूज करता हूँ, मनोज गोपाल कृष्ण नायर।
So all records are Manoj G Nair. So I think you should get a name corrected from someone who, Okay. it's a honest advice कि आप name correction करा लीजिए. It will help you in the long run. ताकि आपकी health और जो अभी जो job related issues है या struggles है, they will get better. But to start with, at least start offering water to a people tree. It will help you a lot. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you so much. Okay, thank you. So this was from my side, and yes, again, as I said, those who are looking forward to make a career in numerology or really want to join numerology course, today is the best of best offer. जो लोग join करना चाहते हैं, ping कर सकते हैं, and then you can take it further. And 100% refund policy, as I said, based on the 23 assignments, 23 day के. So I'm very Sir, thankful. can I to ask a everyone. last question? Yes, please. Can I ask a question, please? Yes, please. Yeah, see, I want to do this course for my husband who is having health issues. Okay. But the problem is that he's a person who will never change his name spelling, or he will not do anything as a remedy. So will it help me in any way if I join this course to take care of his I health? can tell you one thing. हिंदी में एक कहावत है, Yeah. खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है. Uh-huh. ठीक है? If you Okay. start practicing numerology and if you start showing results to Hmm. your husband, बाहर के लोगों का, Okay. so definitely there will be a Okay. time where he will say कि हाँ यार ये काम कर रहा है. Generally एक जो हिंदी में दूसरी कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर. So people don't value. Exactly. When you start Yes. doing the things and when you show the results, तो सामने वाला आप पे यकीन करना शुरू करता है, वरना क्यों यकीन करेगा? मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर. So definitely you can take a call and you Actually can. उनका birth number, हाँ जी. उनका birth number 7 है, destiny 1 है. तो हाँ. वो मतलब बहुत इसीलिए कुछ भी किसी को ट्रस्ट नहीं करते, स्पेशली मुझे नहीं करते. तो मैं अगर ये कोर्स करूं और कोई रेमेडी वो नहीं करेंगे तो फिर मुझे बड़ा दुख होगा. नहीं, आप डेफिनेटली मैंने वही कहा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है. डेफिनेटली जब आप रिजल्ट देने शुरू करेंगे तो वो आप में बिलीव डेफिनेटली करना शुरू करेंगे. समवन हैज आस्क्ड मी दैट व्हाट इज द ऑफर प्राइस. इट्स ओनली 7,500 और टुडे. कल से वापस 10,500 हो जाएगी. ऑलरेडी बुकिंग शुरू है एंड वी आर नॉट टेकिंग लाइक भर भर के बिल्कुल नहीं देने वाले. मैक्सिमम 20 पीपल, दैट्स फॉर श्योर. सो सर सिर्फ अगर कंसल्टेशन लेना है तो कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे 1-to-1 मैसेज कर सकते हो. आई लेट यू नो व्हाटएवर इज द प्रोसेस. बट आई थिंक यू हैव बोथ द चॉइसेस. आप मुझे कॉल कर सकते हो कल. यू हैव माय नंबर आल्सो. यस सर. ओके. सो इट वाज वेरी नाइस मीट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सबने अपना कीमती समय निकाला. इफ पॉसिबल प्लीज अपना कैमरा 1 मिनट के लिए ऑन कर दीजिए. एटलीस्ट वी कैन सी ईच अदर. ललित जी, आप प्लीज हेल्प मी. NLP next batch probably January, December end or January. Those who can, please put on your camera. Please put on your camera. It was very nice meeting all of you. तो थैंक यू एवरीवन. आप सब लोग हमेशा खुश रहिए. आप सबके घर पे हमेशा खुशियां रहे. सब लोग आबाद रहे. You are wonderful person. Thank you so much. Be blessed always. आप सब लोग खुश रहिए हमेशा. Thank you. थैंक यू. See you. Thank you. Yeah. Good night. Good night.